Good morning all of you. My name is Azu Sheikh and I am from Srimati R.S. Kaleria. Our subject is Environmental Science and our unit number 4. Chapter number 9, Balance of Nature. Dear children, do you know what is the meaning of nature? Nature किसे कहते हैं? Nature includes all the natural things of the earth, including plants, animals, landscape, human beings, etc. All the living things are included in it. Nature includes all the natural things. सारी natural things उसमें included होती है, which is on the earth, including plants, animals, landscape, human beings, etc. ये सारी चीजें इसमें included होती है. Nature includes all the natural things of the earth, including plants, animal, landscape, etc. Nature does not include the real terms, but it affects a lot to our human activities. This leads to the interference and actual nature process. Thus, it causes the imbalance in the nature. अगर कुछ factors affect करते हैं, so it causes imbalance in the nature, in a natural cycle of the environment, which cause various environmental issue. अलग-अलग environmental issue cause हो सकते हैं. Then ecosystem. In ecosystem including all the living things, that is plants, animals and human beings. Ecosystem के अंदर सारी living things included होती है, जो plants, animals and human beings भी included है. An ecosystem includes all the living things, that is plants, animals, human beings in the given area, interacting with each other and also with the non-living environment, that is the sun, the earth, soil and the water, etc. ये सभी चीजें living things जो है वो connected है, joined है किसके साथ? All the non-living things. And in environment कौन सी? जो sun है, water है, earth है, soil है, this all are also included in it. ये सभी भी इसमें include होती है. In an ecosystem, each organism has its own role to play. सभी organism living हो, non-living organism होते, all are playing their own role. वो अपना एक खुद का अलग से ही किरदार निभाते हैं. Either it is a living or a non-living. या तो वो non-living thing है या तो फिर वो living thing है. The source of energy flows and the cycle of the life. जो source है energy के वो हमें मिलते हैं और उसकी help से all the life cycles work correctly or continuously. All the components of the ecosystem are dependent on each other as well as the non-living environment around them. सारे जो ecosystem है वो एक cycle की तरह चलती है and all the components which are included in this ecosystem are indirectly or directly dependent. एक दूसरों पे depend निर्भर करते हैं और एक दूसरों के हेल्प से वो मूव करते हैं. इसी तरह पूरा इकोसिस्टम चलता है. Either it is a non-living thing or a living thing in an environment. Either it is a plant, animal or human being or it is a sun, soil, rock, earth, etc. कोई भी चीज हो, वो हर एक चीज एक दूसरों पे डिपेंड करती है. वो वाटर हो या वो ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कुछ भी हो. They all are dependent on each other. वो एक दूसरों पे डिपेंड करती है और इसी तरह पूरा जो फ्लो है साइकिल, लाइफ साइकिल का, वो चलता है. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है? There are two components, biotic components and abiotic components. Biotic components having biotic factors and abiotic having abiotic factors. So the components of an ecosystem include biotic components. First we will see about biotic components. Biotic components क्या है? The living thing of an environment or ecosystem are included in biotic components. कोई भी living things है environment के और ecosystem के, वो किस में fall होते हैं? Biotic components में. Any living thing in environment or ecosystem are under a biotic components. It includes all the associations or all the numbers of interrelated population belonging to the different species
species in a common environment. कोई भी तरह के डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग तरह के कोई भी एनिमल्स है, लिविंग थिंग्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं एंड दे आर इंटर रिलेटेड, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, अटैच्ड होते हैं. द ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा फ्रॉम द बायोटिक कंपोनेंट्स, ये क्या करते हैं, सब बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं. आइदर इट इज एनिमल, इट्स प्लांट और इट इज एन ह्यूमन बीइंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें इंक्लूडेड है. द बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर. क्या क्या होता है बायोटिक कंपोनेंट्स में? कंज्यूमर, द थिंग विच इज कंज्यूम, विच इज यूज्ड. देन प्रोड्यूस, हु प्रोड्यूस, कहाँ से आती है ये चीजें. एंड द डिकम्पोजर, वो कैसे खत्म होती है, कैसे डिकम्पोज होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स. ओके, नाउ विल सी बायोटिक फैक्टर. हमने पहले देखा बायोटिक कंपोनेंट्स, अब हम देखेंगे बायोटिक फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड है. The biotic factors are useful in the number of ways. ये हमें अलग अलग number of ways में useful होते हैं. And there are the different ways to use these factors which are falls in biotic factor. First one is plant, then second is animal, and the third one is microorganism. Plants. First we will study about plant. Plant provides us food. They are called the primary producer as they make food on their own by the process of photosynthesis. photosynthesis की प्रोसेस से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं एंड दे आर नोन एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड. प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड. प्लांट हमें क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है और उसे हम क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर. उसे हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं. As they prepare or they make their own food, वो अपना खाना खुद बनाते हैं by the process of photosynthesis. photosynthesis की प्रोसेस से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. The food prepared by green plants is consumed by herbivores and later these herbivores are consumed by omnivores. जो फूड है प्रिपेयर करता है प्लांट खुद के लिए, वो फूड और वो प्लांट को कौन कंज्यूम करता है? हार्बिवोरस. हार्बिवोरस मीन्स द एनिमल्स विच ओनली ईट ग्रीन लीफी प्लांट्स, जो सिर्फ ग्रीन चीजें, ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं. दे डू नॉट ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स. वो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स नहीं, वो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स और वी कैन से ग्रीन प्लांट्स खाते हैं. And वो herbivorous animals later on consumed by omnivorous which eat plants and animals. जो plants भी खाते हैं और animals का flesh means animals को भी खाते हैं. वैसे animals जो होते हैं वो herbivorous animal को consume कर लेते हैं, उन्हें खा लेते हैं. Thus plants are the main source of food. Plants जो है वो क्या है? main source of food है. Plants also take in carbon dioxide and give out oxygen and the precious gas we need to breathe. Plants जो है वो क्या करते हैं? breathe in करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं give out oxygen, and oxygen is precious gas for us human beings and animals. All the animals and the human beings breathe in oxygen. हम लोग क्या breathe in करते हैं जब सांस लेते हैं? we intake oxygen and we release carbon dioxide. But in plants intake carbon dioxide and releases oxygen, which is a gas we need to breathe. Now next we'll see animals, another factor of biotic factor. Animals are also an important part of a biotic components. Animals है वो भी एक important part है किसके? biotic components में. They also the source of food for the small animals and consumed by the big one. They are also act as a source of food for a small animals and then big animals consume small. जो बड़े animals होते हैं वो छोटे animals को खा लेते हैं. They consume the small animals. Like rabbit and the squirrel helps in the dispersal of seeds as they carry the seeds
टू फार ऑफ द प्लेस एंड डिस्पर्स देम। जो स्क्विरल्स होती है, देन द रैबिट्स आर यूज फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड्स को स्कैटर करने में हेल्प करती है, एज दे कैरी सीड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर। एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसी तरह से सीड्स जो है वो स्कैटर हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। एनिमल ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। एनिमल्स जो है वो भी क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दे ब्रीदिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है, प्लांट, एंड इट प्रिपेयर इट्स फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड दे ब्रीदिंग कार्बन डाइऑक्साइड। And the last factor of biotic factor is microorganism. First we have seen plant, then we have seen animals, and now microorganism. Microorganisms are also called decomposers. They are also known as decomposers. They act on the dead animals remain or on the plants. या तो डेड एनिमल्स या जो प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स होते हैं उन पे वो एक्ट करते हैं, उन्हें वो खाते हैं, एंड दे डीकम्पोज, दे फिनिश, इसको पूरा खत्म कर देते हैं। The dead animals and plants remain are degraded by the action of this microorganism. इन माइक्रोऑर्गेनिज्म के एक्शन करने से, वर्क करने से वो जो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स है वो डीकम्पोज हो जाते हैं। एंड the action by microorganisms thus returning in the nutrition and into the black soil. Now next we will see abiotic factors. Next we have seen biotic components. Now we are going to see biotic components, and the non-living things of an ecosystem or environment are the non-biotic components और abiotic components। जो non-living things होती है environment की और nature की, वो किस में आती है, abiotic और non-biotic components में आती है। That is soil, water, air, light, etc. are in the abiotic components. Now what is abiotic factors? अबायोटिक फैक्टर्स में क्या चीजें आती है, एयर, वाटर, सॉइल, ये तीन चीजें हैं जो अबायोटिक फैक्टर्स में होती है। We'll see line by line. The abiotic factors are also used in the number of ways as compared to the biotic factors. जैसे biotic factors हमें अलग अलग ways में useful थे, उसी तरीके से हमें abiotic factors और non-biotic factors भी useful है। There are lots of uses and lots of ways that these factors are useful to us. हमें कैसे use में आते हैं। First we'll see air. First factor of abiotic factors. Air. Air is support system of life. Without air, there can be no life on the earth. Earth पे air is important. Without air, there is no life. अर्थ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते, बिकॉज ऑफ एयर। एयर इज यूज टू अस फॉर ब्रीथ, हमें ब्रीथ करने के लिए प्लांट्स है, एनिमल्स है, फॉर ऑल दिस एयर इज इम्पॉर्टेंट। विदाउट एयर नो वन कैन सर्वाइव ऑन अर्थ। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। फॉर ब्रीथिंग ऑक्सीजन, एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ रिक्वायर एयर। The carbon dioxide given out by the human and animals are used by a plant for the preparation of their food through the process of photosynthesis. Photosynthesis की process से plants जो है अपना food बनाते हैं, but कैसे? As we human being and animals, हम human beings और animals क्या intake करते हैं, क्या breathing करते हैं? ऑक्सीजन, एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स एंड ह्यूमंस बोथ रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड कौन ब्रीदिंग करता है, प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड देन दे रिलीज आउट ऑक्सीजन। वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, एंड देन
the human being again intake oxygen and release carbon dioxide. Like this cycle is continuously goes on. ये cycle ऐसे ही चलती रहती है. So without the factor air factor के बिना no living organism cannot survive. वो कोई भी living organism हो वो अर्थ पे survive नहीं कर सकता. Then next one is water. All living beings need water. Water is used for various purpose like cooking, bathing, cleaning, etc. It is used by a plant for carrying out the photosynthesis process. वाटर जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स वाटर. विदाउट वाटर दे कैन नॉट सर्वाइव. जैसे ह्यूमंस एंड एनिमल्स और प्लांट्स सभी के लिए, ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर इज मस्ट. हम वाटर्स कितने अलग अलग वेज में यूज करते हैं. बाय ड्रिंकिंग, हमें पानी पीने के लिए चाहिए. क्लीनिंग, सफाई करने के लिए चाहिए. वॉशिंग, देन बाथिंग, कुकिंग, ये सभी प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, सभी वर्क में हमें चाहिए वाटर. विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. एंड फॉर प्लांट्स के लिए वाटर कैसे यूज होता है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. विदाउट वाटर दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होने के लिए, उस प्रोसेस को चलाने के लिए वाटर इज एसेंशियल. विदाउट वाटर द प्लांट इज नॉट ग्रोइंग, द प्लांट इज नॉट एबल टू डू एनी प्रोसेस और डू एनी प्रिपरेशन फॉर द फूड प्रोसेस. उसकी खुद की प्रोसेस फूड की है वो नहीं कर पाएगा. देन थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर ऑफ अबायोटिक फैक्टर इज सॉइल. सॉइल इज द लेयर दैट कवर द सरफेस ऑफ अर्थ. सॉइल एक ऐसी लेयर है जो क्या करती है, अर्थ की सरफेस को कवर करती है. इट इज द होम ऑफ मैनी इंसेक्ट्स. बहुत से इंसेक्ट्स का होम है. बहुत से एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है जो कहाँ, सॉइल में रहते हैं. दिस इज द लेयर वेयर द प्लांट्स ग्रो. ये वो लेयर है जिसपे प्लांट्स ग्रो करते हैं. प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सॉइल्स. अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स आर नॉट एबल टू ग्रो. सो हमने ये तीन फैक्टर्स देखे अबायोटिक के. फर्स्ट इज एयर, सेकेंड इज वाटर एंड थर्ड इज सॉइल. और ये तीनों एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. नाउ नेक्स्ट वी विल सी बैलेंस ऑफ नेचर. बैलेंस ऑफ नेचर. बैलेंस ऑफ नेचर कैन ओनली बी अचीव्ड and maintained by keeping the biotic and abiotic components in a correct proportion. Abiotic and biotic components है means living and non-living organism जो है अर्थ के, उसे एक करेक्ट प्रोपोर्शन में, एक करेक्ट अमाउंट में मेंटेन करने से ही अचीव होगी बैलेंस ऑफ नेचर. उसे एक परफेक्ट बैलेंस पे रखने के लिए बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर का प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना जरूरी है. As we know, all the living and non-living beings in an environment is directly or indirectly depending on each other. वो एक दूसरों पे डिपेंडेंट है. कौन, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट की. इकोसिस्टम के जो नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरों पर डिपेंडेंट है, और आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली है या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है. We need to save them all and use them correctly and maintain the balance of nature. हमें उन एनिमल्स को, उन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स को जो एनवायरनमेंट की है उसे एक करेक्ट प्रोपोर्शन में यूज करना है और हमें बैलेंस ऑफ नेचर को मेंटेन करना है. टू अचीव द बैलेंस ऑफ नेचर वी शुड keep or we should maintain the living and non living things in proper proportion. एक करेक्ट प्रोपोर्शन में रखना चाहिए. Human activities like deforestation, water pollution, air pollution, animal hunting, etc. leads to the imbalance and thus causes the improper functioning. कौन से factors? Air pollution, animal hunting, then water pollution, then another is deforestation. Plants का कट करना, animals hunting करना means animals का शिकार करना, then एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सभी चीजें क्या करती है, बैलेंस ऑफ नेचर को इम्बैलेंस करती है. उसका मेंटेन, उसका जो प्रोपोर्शन है उसको मेंटेन नहीं रखती, उसको खराब कर देती है. और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिस अफेक्ट होल फंक्शन
फंक्शनिंग ऑफ द साइकिल, पूरी जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द इम्बैलेंस ऑफ नेचर। ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो बैलेंस में बैलेंस और इम्बैलेंस मींस बैलेंस को बिगाड़ते हैं, उसे खराब करते हैं। फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर इम्बैलेंस ऑफ नेचर, नेचर के इम्बैलेंस को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। Various factors responsible for causing imbalance of nature including population, development, animal hunting, population and many other things. Pollution, air pollution, water pollution, animal hunting, then population, development, ये सभी चीजें हैं वो अफेक्ट करती है किससे अफेक्ट करती है बैलेंस ऑफ नेचर को। जो क्या करता है, बैलेंस ऑफ नेचर को इम्बैलेंस, उसे उसका बैलेंस बिगाड़ देता है। ज्यादा प्रोपोर्शन में कोई भी चीज हो या तो कम हो जाए, इफ देयर इज अ लैक ऑफ एनीथिंग और देयर इज मोर थिंग मींस वो उसका जो अमाउंट है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए। किसी भी चीज का ज्यादा होना या कम होना, दोनों चीजें अफेक्ट करती है उस पर्टिकुलर थिंग को। सो द बैलेंस, द प्रॉपर क्वांटिटी और द प्रॉपर बैलेंस और अमाउंट का जो प्रोपोर्शन है वो मेंटेन होना जरूरी है। If this factor not taken care of, this would be lead to a great destructions to make our plants unfit for living things. हमारे plants को, हमारे animals को unfit बनाएगा, उनकी जो population है उसको वो खराब करेगा, उन्हें वो affect करेगा और हमारे planet को वो unfit बना देगा। हमारा जो planet, हमारा जो earth है उससे वो पूरी तरह से we can say नुकसान पहुंचा सकता है। So the factor related to the water pollution, air pollution, population, development, animal hunting, ये सभी चीजों को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें एक्सेस हो गई और या तो कम हो गई, so it will affect directly or indirectly to whole cycle or we can say whole life cycle। इसी तरीके से हमें इन सभी चीज को बचा के रखना है और इन्हें प्रॉपर क्वांटिटी में और प्रॉपर अमाउंट में ही होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल सी प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ नेचर को, उससे हम उसे कैसे बचा सकते हैं। To ensure the healthy living, it is very important to save or conserve the components of ecosystem. Ecosystem के components क्या है, biotic and abiotic components, जिसमें क्या आता है, animal plants आते हैं, water, air, soil आती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को बचाना, उसे एक परफेक्टली हेल्दी रखने के लिए इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स है जो हम यहाँ देखेंगे। We should use all the resources without any wastages. हमें सभी रिसोर्स को यूज करना है बट उसे हमें वेस्ट नहीं करना। We should use every resources but in a proper amount. जितनी जरूरत है उतना ही यूज करो। एक्सेस यूज भी हमें अफेक्ट करेगा और कम यूज करना भी उसे अफेक्ट करेगा। So how much is required, use that much only. किसी भी चीज का ज्यादा करना या कम होना खराब है, जितनी जरूरत है उतना ही उसे यूज कीजिए। Pollution control, avoid deforestation, spread awareness among the masses about the importance of biotic and abiotic factors. क्या क्या हमें ध्यान रखना है, avoid deforestation, plants को काटना नहीं है, trees को कट नहीं करना, then population को कंट्रोल करो, then pollution कम करो, स्प्रेड अवेयरनेस, सबके माइंड में अवेयरनेस, एक चीज जगाओ के हाउ, कैसे ये दो फैक्टर्स है वो हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी रख सकते हैं। फैक्टर कौन से, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, इनसे हमें कैसे मेंटेन करना है। कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी। Nowadays environmental days and Wan Mahotsav are celebrated to create awareness among the people and importance of the environment. हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अवेयरनेस पब्लिक के माइंड में होनी चाहिए, उसके लिए वन महोत्सव और एनवायरनमेंट डे जैसी चीजें सेलिब्रेट की जाती है। So this is all about the balance of nature. Hope you all understand. Thank you all and have a good day.